देखें कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। People, we're lucky to have. I have to tell you, I want to thank you all, and Elon, I want to thank you. I know you've been through a lot with this horrible situation that happens. Second American. It's very unfair. What he is a patriot. Here's a man that I can tell you, he's a friend of mine. He's become a friend of mine. He supported me in the election. That's when I got to know him. Really, I knew him a little bit from the first term, but not much. But he's a patriot more than anything else. He's never think of it. He has never asked me for a thing. He could have. I always say, I wonder if he's ever going to ask me for something. And that's always subject to change. And if it does change, I'll let you know about it. But Elon has never asked me for a thing. I mean. ये इनका पुराना बयान था, इसको इलॉन ने कोट ट्वीट किया और चेहरा बनाकर भौं ऊपर चढ़ाकर बोल रहे हैं कि भाई क्या हो गया। कभी तो भाषा ऐसी थी, आज भाषा इतनी तल्ख कैसे हो गई। खैर तल्खी तो अभी सर और बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली, क्योंकि इलॉन को अमेरिका से डिपोर्ट करने की मांग उठ गई है। डिपोर्ट इलीगल एलियन इलॉन मस्क एंड सीज स्पेसएक्स। ट्रंप एला स्टीव बैनन डिमांड्स प्रोब इनटू टेस्ला सीईओ's इमिग्रेशन स्टेटस। अरे बाप रे बाप। तो अब आ गए हैं ट्रंप बिल्कुल उस रुतबे में जो सत्ता का होता है कि तुम मेरे से ज़्यादा उड़ोगे तो तुम्हारी फाइल खुलवा दूंगा किसी और के द्वारा कंप्लेंट करा के। और फाइल जब खुलेगी तो इमिग्रेशन स्टेटस देखेंगे और कह देंगे कि नहीं इसमें ये कागज़ नहीं, इसमें कागज़ नहीं, गड़बड़ है मामला। जहाँ से आए वापस वहाँ भेज देंगे और आ रही आपकी स्पेसएक्स कंपनी तो उसको हम सीज कर लेंगे। ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे काम बन जाएगा क्या? इलॉन ने कल कहा था और हमने भी कहा था रिसेशन जो है अमेरिका में आएगा, नुकसान अमेरिका को होगा इन सब चीज़ों का जो टैरिफ लगा रहे हैं। अब टैरिफ का नतीजा क्या है जरा देखिए। What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. As countries do deals with us, that will go to zero. As countries do deals with But us, the that will cost go is to on the zero. American consumer now and on the businesses with the confusion now. Mr. Secretary, I believe you know better. I believe you recognize that a trade deficit is not something to fear. I believe you know that predictability, stability. टैरिफ जो लगा है अल्टीमेटली अब जो है वो हर्ट करने लगा। देखिए सबसे पहली बात समझिए, बनाना जो है अमेरिका में नहीं होता, अमेरिका में केले नहीं होते, विदेशों से जाते हैं। जहाँ से भी जाते हैं कुल मिलाकर उन पर 10% का टैरिफ है। यानी अमेरिका का व्यक्ति अब 10% ज़्यादा महंगा सामान खरीद रहा है। समझिएगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगा सामान खरीद रहा है तो ठीक है। और इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद क्या होगा? रिसेशन आएगा, क्योंकि नौकरियाँ तो है नहीं, तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है। तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि डेफिसिट बढ़ा हुआ है, बजट डेफिसिट बढ़ा हुआ है। अगर तनख्वाह बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे आप। तो दो मुही तलवार पर चलती है। टैरिफ लगाना ट्रंप की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये चीज़ नुकसानदायक होगी। अब जो है जनता को उसकी हीट फील हो रही है, जनता को सामान धीरे धीरे महंगा मिल रहा है, तो जनता नाराज़ भी होगी बट ऑब्वियस है। खैर ट्रंप साहब ने एक बड़ा एडमिशन किया आज, बड़ा, ज़रा सुनिएगा। Remember, I'm the one that ended Nord Stream 2, going to a place called Germany, come to think of it. I'm sorry I did that. But I ended Nord Stream 2, nobody else did. I ended Nord Stream 2, nobody else did. I ended Nord Stream 2, nobody else did. And then when Biden came in, he immediately approved it. That's the largest, essentially the largest pipeline in the world, going to Germany and other countries. And by the way, we have so much oil and gas, you will not be able to buy it all. I mean, you literally, we have so much, and I hope we're going to make that a part of our trade deal because we have more than anybody else. We have actually the most. तो ट्रंप यहाँ पर जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आई हैव एंडेड द नॉर्थ स्ट्रीम। कल तक ये आरोप लग रहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम को जो है यूक्रेन ने उड़ा दिया। ये वो पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है जो रशिया से आती है और जर्मनी तक जाती है, पूरे यूरोप तक जाती है। उस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ा दिया था। ट्रंप आज इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि ये पाइपलाइन मैंने उड़ाई थी, इसको एंड मैंने किया। और उसके बाद कहते हैं जर्मनी से, तमाम सारे अन्य देशों से कि आप चाहो तो हमसे ले सकते हो ना, आपको ऑयल चाहिए हमसे लीजिए, हमारे पास है, हम देंगे आपको। आ गए ना असलियत पे। हम भी यही कह रहे थे उसी समय। मैंने कहा था ये इसको तोड़ा ही सिर्फ इसलिए गया है ताकि येन केन प्रकार कैसे भी करके पूरा मार्केट जो है वो कैप्चर किया जाए। और मार्केट कैप्चर का झगड़ा था सर, ये कुछ झगड़ा नहीं है। तेल हमसे ले लो, गैस हमसे ले लो, रशिया से बंद कर दो, पर बहुत दूर पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, अल्टीमेटली उन्हें रशिया ही सस्ता पड़ेगा। खैर अगली न्यूज़ पर चलते हैं। Let's get you this quick breaking update that directly concerns your life. Now, Starlink has got a license for SATCOM services in the country. In fact, Elon Musk Starlink has got this license, according to sources, is what we are learning. And this, remember, is going to be the third company to secure the license from the DOT, that is the Department of Telecommunications. Sources in the department have also confirmed that Starlink has indeed received that license, and they said that it will be granted a trial spectrum in the next about 15 to 20 days of applying for the same. चलिए साहब, वेरी गुड। स्टारलिंक को फाइनली भारत में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया है। अब तक ये लाइसेंस सिर्फ जियो और एयरटेल के पास था, जो एयर फाइबर जैसे आप बोल रहे हो। अब ये स्टारलिंक को भी मिल गया है। अभी अगर पिछले लाइव में ही कोई आता है रात को, उसने कहा था कि भारत को ट्रंप को पकड़ लेना चाहिए कि आप हमारे यहाँ हो, अमेरिका में दिक्कत है, हमारे यहाँ जाओ।
फिलहाल लाइसेंस तो मिल गया सर, आगे देखिए और क्या क्या होता है। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालांकि इस लाइसेंस के मैं फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जिन कंडीशंस के साथ दिया गया वो कंडीशंस वही हैं जो जियो और एयरटेल के ऊपर लागू होती है, और बाकायदा उन्होंने साइन किया है, तो वही कंडीशन स्टारलिंक को भी दी गई है। ठीक है, बराबर, ठीक है, बुराई नहीं है। अगर इलॉन जैसा कोई व्यक्ति आता तो कोई बुराई थोड़ी है। www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भर दीजिएगा, एड नोट ढूंढ कर उसमें नंबर और नाम अपना टाइप करके फिर भेज दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, हैंडल्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा, और जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।